yourself because there are lots of disturbances I feel, so I cannot concentrate on the lecture. uh, this is a practical course. It's an open discussion in a vice versa. So whenever you have doubt or when you want any question related to the topic, you are always welcome. So at that time you can unmute yourself and can ask a question. Again repeat, only by hearing you can't gain not, everything. So जैसे जैसे आपको कुछ भी मन में सवाल आते हैं तो you can ask and solve your doubts. So it's a very helpful for your clinical practice. So in today's lecture, we will learn the infertility, definition of infertility, types of infertility, and the proforma of infertility history. How to take a infertile couple history. So मैंने ऐसा प्रोफॉर्मा एक बनाया है. दैट प्रोफॉर्मा at my center we run the test my hospital is a pure infertility center. So we are doing every infertility practice and we have IVF center. So my 90% practice is only the infertility. In 10% I am doing the obstetric and gynec work. So in infertility we have a proforma. So my medical officer always take a history from that proforma and then afterward then patient comes to me. So मुझे तो ऐसा लगता है कि only by taking history properly you have a 70% idea that this patient may have this problem. So only by taking a proper history without even touching to the patient, we have a provisional diagnosis. After examination, I will put the investigation part. So 70% work will be covered here. And then 30% is only depend on result of the report that we are doing for confirmation. So that's the importance of here history. Everybody are taking history, but in routinely we are not taking a very detailed history of every patient, but in infertility detailed history of both female and male as well as total family history is must needed. So that's why there should be a proper proforma of the infertility history. So that we will going to discuss how to take a proper history. So learning objectives are: know the definition of primary and secondary infertility, understand the cause of infertility. Once you made the provisional diagnosis, then refer for investigation. There are lots of investigations are available. So in every time we cannot prescribe whole investigations to the every couple. So we, by just taking a history, we in a mind we make a provisional diagnosis and then we will decide which investigation we going to advise to that patient. Then we will check one by one. Check for ovulatory factor, check for tubal factor, check for uterine factor and check for male infertility. So in every my class of infertility, I am telling infertility is like a maths. 1 plus 1 is equal to 2. Always, it's a universal theory. So here in infertility also, only 4 factors you have to keep in mind. Either there will be the problem at ovarian factor, tubal factor, uterine factor or male infertility. So ये एक पजल जैसा है. You have to identify इन चारों में से कौन एक है. Like a MCQ. हम एग्जाम में just right answer we have to choose.
सो इन चारों में से कोई एक होगा और कई बार दो भी हो सकते हैं. So by history we had a proper rough idea of provisional diagnosis should be made in our mind. Then and then only we jump to the investigation and then find out the pathology, and then after treatment would be the possible. So this is in a perfect manner we will going to treat the patient. So definition पहले तो what is called infertility. कोई भी कपल आपके पास आता है तो एवरी कपल विल यू कंसिडर इट एज ए इनफर्टाइल ट्रीटमेंट के लिए आता है? नहीं. सो यू हैव टू आस्क द पेशेंट द क्रॉस क्वेश्चन, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर ट्राइंग टू कंसीव विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन. सो इट्स नॉट लाइक दैट यू आर गोइंग टू आस्क कितने साल शादी को हुआ, बिकॉज sometimes due to such carriers marriage is early at 18 years suppose, and then 4-5 years they are making in the carrier, so they are not planned to conceive. So you have to ask the couple, since how long you are trying to conceive without using any contraceptive method. That is the definition. So infertility is the inability to achieve a pregnancy after 12 months of the unprotected regular intercourse. If the couple is trying since 1 year and still they are not able to conceive without using any contraceptive method, they are trying, then and then we considered them as an infertile couple. Now, there are types of infertility. It could be primary or it could be secondary infertility. What is called primary infertility? So, you have a knowledge whether this pregnancy is primary or secondary. So, what do you mean by primary infertility? The term used to describe a couple that has never been able to conceive a pregnancy after at least 1 year of unprotected intercourse. ऐसा कि वो लाइफ में उसे कभी भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, केमिकल प्रेगनेंसी नहीं, मिस अबॉर्शन नहीं, कुछ कभी भी प्रेगनेंसी रुकी ही नहीं है. दैट वी कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी. सो प्लीज मेक अ क्लियर, when the patient comes to your clinic, first identify whether it is ideal infertile couple. Second, whether it is primary or secondary infertility. In primary, it is never been conceived in a life. And secondary is couples who have previously been pregnant at least once, include missed abortion, ectopic pregnancy और लाइव बर्थ. सो अगर पेशेंट कभी भी पास्ट में एक भी बार कंसीव हुआ हो, हालांकि अबॉर्शन हो गया हो, स्टिल दे कंसिडरेड एज ए सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. सो अगर उसको फर्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है या मिस अबॉर्शन हुआ है, then they also considered as a secondary infertility. Now comes the proforma. पहले आप पेशेंट आया आपके पास, आपने पहले तो डिसाइड किया, हाँ दिस इज अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी. Then it is categorized as a whether it is primary or whether it is secondary infertility. Now you will take a proper history. So history, and I will also tell you the importance. First is name. The full name is must. Rama Krishnakant Desai, Rama Rajesh Gupta, like that. Because sometimes two same name patient and same surname
the prescription may interfere or it will be create a problem in later on when you want to require any semen examination or ART techniques. At that time there will be the so much problem. So always, not in infertility, in any practice, try to make a full name of the patient. Then the age is very important to write in infertility, because all we know, with advancing age the ovarian reserve capacity in female drastically reduced. So that's why we are very much concerned about the age, because the studies shows that chances of conception 50% reduced after the age of 35. Then third one is husband age, female age as well as husband age. Husband age is also important because sometimes there may be the semen variations occur also according to the age. Then ask about AML. What is AML? Active marital life. Active married life. What is that? Since they using trying to conceive without intercourse are called active married life. Without contraception, sorry. That is called active married life. तो वो लोग 6 महीने से एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं प्री प्रेगनेंसी के लिए, देन इट इज कॉल्ड AML. Because as I told you previously, married life is 2 year, but active married life is 6 months. Because since 6 months they are trying to conceive, not since 2 years. So that is called AML, active married life, very important in primary infertility. AML means active married life. Full form is active married life. What is that? Since the time couple trying to conceive without using contraception, it is called AML. पेशेंट को आप पूछोगे कि शादी 2 साल से हुई है बट 6 महीने से ही हम बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, पहले 1.5 साल तक हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते थे, तो उनकी एक्टिव मैरिड लाइफ तो 6 मंथ्स की हुई इनफर्टिलिटी में. तो दैट इज कॉल्ड AML. देन हिस्ट्री ऑफ यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन इन द पास्ट. बच्चा नहीं रखने के लिए उन्होंने पास्ट में कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन को ट्राई किया है. सो दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. देन कम्स द C/O. इट इज कॉल्ड कंप्लेंट ऑफ. हालांकि पेशेंट इनफर्टिलिटी के लिए आया है, बट इफ देर इज एनी associated chief complaint, you have to write main complaints. Suppose patient will tell you there is a complaint of white discharge, foul smelling discharge since long. So अगर पेशेंट ऐसा बोलता है तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ, इट कुड बी द साइन ऑफ वजाइनाइटिस, सर्विसाइटिस, और in certain cases it is the sign of PID, pelvic inflammatory disease. Due to infection there may be the tubal damage is there. So at the time of the investigation I would think regarding the tubal factor. So that's why always ask a chief complaint. Then in obstetric history write down whether it is primary or whether it is secondary infertility. As I told you, in primary always ask active married life. And secondary, in secondary में write this. This I had keep the example. Suppose history of one, उनको आगे एक डिलीवरी की हिस्ट्री है तो उसका भी आपको प्योर डिटेल हिस्ट्री लेना है. कैसे लेना है? सी हियर ऑन द स्क्रीन.
हिस्ट्री ऑफ 1 FTND मीन्स फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी। 1 FTND मेल है कि फीमेल है, 4 कितने साल का है, तो 2 साल डिलीवरी को हुए, एट हॉस्पिटल या होम डिलीवरी हुई थी, विथ और विदाउट पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन। अगर सिजेरियन हुआ है तो लिखने का FTCS। FTF मीन्स फुल टर्म। अगर अधूरे महीने पे हुआ है बिफोर 37 वीक्स तो इट इज कॉल्ड प्री टर्म। तो PTD दैट इज कॉल्ड प्री टर्म डिलीवरी, तो आपको लिखना पड़ेगा PTD या PTCS। तो FTND है, FTCS है, PTD है कि PTCS है, मेल है कि फीमेल चाइल्ड है, कितने साल का है, जिंदा है या उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उस टाइम पे डिलीवरी हुई थी तो हॉस्पिटल में हुई थी या घर पे हुई थी, और डिलीवरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन था कि नहीं। सो ऐसी पूरी हिस्ट्री लिखने की। सपोज एक है, 2 होता तो क्या करेंगे, सेकंड पहले से उनको बोलने का कि पहले से शुरू करो। सपोज कई पेशेंट ऐसे आएंगे कि बोलेंगे कि मैम पहला अबॉर्शन हुआ, तो हिस्ट्री ऑफ 1 मिस्ड अबॉर्शन एट 6 वीक्स बिफोर 5 years। एक अबॉर्शन के बाद दूसरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और 2 साल का लड़का है, तो सेकंड फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी, हॉस्पिटल डिलीवरी, अलाइव मीन्स अलाइव है, 2 साल पहले हुई थी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। थर्ड फिर उसको अबॉर्शन हुआ, थर्ड उसने MTP कराया, तो आप लिखोगे थर्ड टाइम हिस्ट्री ऑफ MTP एट 5 वीक्स डन बिफोर 1 year। तो पहले तो पेशेंट को बोलने का सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है तो पहले से स्टार्ट करो, उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ MTP है, हिस्ट्री ऑफ मिस्ड अबॉर्शन है, हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक है, हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी है, हिस्ट्री ऑफ एनोमोलस चाइल्ड की डिलीवरी हुई है, हिस्ट्री ऑफ फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी हुई है, हिस्ट्री ऑफ फुल टर्म CS हुआ है, वॉट एवर यू हैव टू आस्क वेरी इन डिटेल। अभी इतना लंबा लंबा लग रहा है, बट व्हेन यू अप्लाई इन योर प्रैक्टिस इट वोंट बी problematic, but you have to train your mind in such a way that you will going to ask these things, and it is very important. Why I am telling you, by taking this history, suppose मैंने बोला कि आप उसको इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री पूछते हो, अभी जिसको रिपीटेड अबॉर्शंस हुआ है दैट मीन्स उसका मिस्ड अबॉर्शन हुआ तो उसके बाद उसने DNA कराया कि नहीं कराया, क्यूरेटिंग कराया है कि नहीं कराया, हिस्ट्री ऑफ DNC प्रेजेंट और नॉट, अपने आप गोली लेके किया तो हिस्ट्री ऑफ MTP पिल ड्रग टेकन फॉलोड बाय नो DNA। अगर पेशेंट ने रिपीटेड MTP लिया हुआ है, अगर रिपीटेड DNC किया हुआ है, अगर हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक है, तो दे ऑल इंडिकेटिंग अ साइन ऑफ pelvic inflammatory disease or endometriosis. Mainly 80% chance of PID are there and 30% may be endometriosis. So by the end of history you have clear in mind that okay, then if the patient have long history of labor and post delivery there are PPH हुआ, पेरीपार्टम हेमरेज हुआ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसे करना पड़ा, पेशेंट सामने से बोलेगा, आप पूछोगे तो बोलेगा, वो नहीं बताएगा अभी बच्चा रखने के लिए आया है कि मैम मुझे पहली, तो आपको पूछना पड़ेगा कि पहली प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम आपको हुए हैं। कुछ नहीं होगा तो वो बोलेंगे कुछ नहीं हुआ,
बट आपको आपको पूछना पड़ेगा कि कुछ खून चढ़ाना पड़ा था, लंबे समय तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ा था, तो वो देन वी विल गिव यू द हिस्ट्री. सो अगर प्रेगनेंसी के अराउंड कोई ऐसी हिस्ट्री है उसको, या रिपीटेड डीएनसी हुआ है, तो इन सब की वजह से देर मे बी द चांस ऑफ पीआईडी और एंडोमेट्रियोसिस, और उसके लिए आपको उसमें ट्यूबल फैक्टर देखना पड़ेगा. सो किसमें क्या देखना है वो आप हिस्ट्री से ही डिसाइड करोगे कि पहले मैं कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराऊं, बाय जस्ट आस्किंग हिस्ट्री. देन comes the MH. What is that? It is called menstrual history. That also you have to take very detail. You first write the LMP, that is called last menstrual period date. अभी छिल्ले लास्ट में कौन सी तारीख को मेंसेस आया, दैट इज कॉल्ड LMP. वो लोग ऐसा बोलेंगे कि 6 तारीख को 5 दिन हुए थे, ऐसा नहीं. फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन वी विल काउंट ऑलवेज इन इनफर्टिलिटी, इन ऑब्स्टेटिक. तो पूछने का कि कब कौन सी तारीख को लास्ट में आपको मेंसेस स्टार्ट हुआ था, दैट इज कॉल्ड LMP. फिर आप पूछोगे पास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री. थोड़ा कट गया है, तो पास्ट यानी ओके, अभी तो उसने बोला कि 20 जून को आया था. देन यू विल आस्क अबाउट पास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री. सो उसमें आप क्या पूछोगे, तो फिर आप पूछोगे साइकिल है वो रेगुलर है कि नहीं है. 25 to 35 डेज के बीच में अगर पेशेंट को मेंसेस आता है तो इट इज कंसिडर्ड एज ए रेगुलर साइकिल. तो कई बार पेशेंट बोलते हैं कि इरेग्युलर आता है, तो वो लोग तो एक दिन आगे पीछे उसको भी इरेग्युलर बोलते हैं, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए इरेग्युलर साइकिल. 25 to 35 डेज के बीच में उसको अगर मेंसेस आता है तो दैट इज कॉल्ड रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो पूछो रेगुलर है कि इरेग्युलर है. इरेग्युलर है तो कितनी इरेग्युलर है, 2 महीने पे आता है, 3 महीने पे आता है, कोई बोलेगा दवाई लेती हूँ तो ही आता है, कोई बोलेगा 15 दिन पे आता है, तो दैट ऑल आर कंसिडर्ड एज ए इरेग्युलर साइकिल. फ्लो कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, मेनोरेजिया है. इट इज पेनफुल और पेनलेस है. थोड़ा पेन सब में होगा, बट ऐसा पेन होता है कि डे टू डे एक्टिविटी इज अफेक्टेड. एंड इतना सिवियर डिस्मेनोरिया होता है कि दैट इज नॉट इवन रिलीव्ड विथ NSAIDs. सो दैट इंडिकेट्स द एंडोमेट्रियोसिस. सिवियर डिस्मेनोरिया, if not corrected with any painkiller, brufen, diclofenac, mefenamic acid, naproxen, whatever she is taking, if it is not responding to the drug, dysmenorrhea not relieved, so that patient may have endometriosis. So here also in your mind clear कि this may have endometriosis. Then by asking a menstrual history, if the cycle is regular, as we know, so that means that cycle, her cycle is mostly ovulatory. So उसमें 90% ovulation होता ही है if the cycle is regular. If the cycle is irregular और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है आपको हिस्ट्री से, सो यू हैव टू कीप इन माइंड द ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन. तो इसके अंडे बनने में या रप्चर होने में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओव्यूलेशन, ओवेरियन लेवल पे प्रॉब्लम है. तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से में कुछ दिक्कत हो आपको तो ऑलवेज रूल आउट फर्स्ट ओवेरियन फैक्टर, ओव्यूलेशन फैक्टर.
और अगर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में कोई लफड़ा दिखता है तो ऑलवेज रूल आउट ट्यूबल फैक्टर. Then past treatment taken, all the investigation, every investigation she have, कितनी मेडिकेशन साइकिल यानी कई बार कितनी जगह दवाई लेके पेशेंट आपके पास आया हुआ होता है. तो आस्क फॉर डिटेल्ड मेडिकेशन हिस्ट्री. IUI कराया है, IVF कराया है, तो राइट एवरी डिटेल हिस्ट्री. मीन्स सब इतना बड़ा बड़ा नहीं, पर 1 साइकिल IVF डन फेल at this center before 5 years, 3 cycles IUI done, नहीं हुई है तो नहीं हुई है. Also ask past medical and the surgical history. Ask for any major illness, disease, surgery हुई है तो हमें पता चले. कई बार पेशेंट विल वोंट टेल यू फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ यू. सपोज पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का है और वो लंबे समय से थायरोनोम या कुछ भी दवाई लेता है, और अगर आपने उसे कुछ नहीं पूछा तो वो बोलेगा कि थायराइड का आपको क्यों बताने का, तो वो आपको नहीं बताएगा. तो आपको पूछने का कि आप लंबे समय से कोई गोली ले रहे हो, आपने कोई सर्जरी कराई हुई है मेजर, तो ऐसा पूछोगे तो दे विल टेल यू इन फ्रंट ऑफ यू, हाँ मैं कब से ये दवाई तो ले रही हूँ. Then history of any major disease, surgery and BT means blood transfusion. Also ask the family history में भी कोई कई बार इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री बहुत होती है या कोई एनोमोलस चाइल्ड की हिस्ट्री है. तो दिस कंप्लीट्स योर हिस्ट्री पार्ट. देन वी विल मूव टू द एग्जामिनेशन पार्ट. तो यहाँ तक आपकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री तक आपकी पूरी प्रोफोर्मा की हिस्ट्री आ गई. तो ये प्रोफोर्मा है, ये आप इसका एक प्रिंट आउट भी करा के ऐसा कर सकते हो और एक छपवा देने का. मेरे यहाँ पे मैंने ऐसा किया है कि एक प्रोफोर्मा बना दिया है एक कागज़ में, उसमें सिर्फ वो फिल ही करेंगे मेडिकल ऑफिसर या जो भी आप हिस्ट्री लेते हो. तो अगर मुझे भी कई बार नहीं होते हैं ऑफिसर और मुझे लेनी पड़ती है, तो एक तैयार ऐसा हमने कागज़ में छिपवा के रखा है, तो कुछ भी पॉइंट मिस आउट नहीं हो. नेम पूछने का, एज पूछने का, यहाँ पे सिर्फ फिलअप ही करते जाने का. एक्टिव मैरिड लाइफ, कॉन्ट्रासेप्शन है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी, पे उस पर टिक लगाने की कि प्राइमरी है तो टिक लगाओ, 3 ईयर एक्टिव मैरिड लाइफ. सेकेंडरी है तो ऐसा ऐसा फटाफट लिख दो. मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में LMP लिखो. साइक्लिकल है कि एसाइक्लिकल है तो उस पर टिक करो. मॉडरेट है, फ्लो पेनफुल है कि पेनलेस है, उस पर टिक मारो. कोई मेजर डिसीज है तो लिखो नो. इन्वेस्टिगेशंस करा में लिख दो. तो ऐसा आप प्रोफॉर्मा रखते हो तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं होगा. और अगर इतनी हिस्ट्री आप अच्छी तरीके से लेते हो, इट हार्डली टेक्स ओनली 2 to 3 minutes. तो इतनी अगर आप हिस्ट्री लेते हो ना, तो मैंने बोला कि 50% आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस यहाँ पे ही आ जाएगा. मैंने सिंपल बताया कि अगर साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में, तो फर्स्ट यू विल लुक फॉर ओव्यूलेशन फैक्टर. अगर डिलीवरी में कुछ लच्छा है, यू विल लुक फॉर ट्यूबल फैक्टर. अगर हस्बैंड की एज बढ़ी है या हस्बैंड के ऑक्यूपेशन पूछने का, तो फर्स्ट यू विल थिंक द मेल इनफर्टिलिटी. सो ऐसा करके आपको पहले तो आइडिया आएगा कि इसमें मुझे इन्वेस्टिगेशन कराने हैं तो मैं कौन से कराऊंगी. सो दिस कंप्लीट्स योर हिस्ट्री पार्ट. नाउ वी विल मूव टू द एग्जामिनेशन पार्ट. एक रिक्वेस्ट है सबको, एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, बिकॉज विद इन 2 minutes में ये मीटिंग एंड होने वाली है. तो बेटर है कि हम फिर से लॉग इन करें. तो नया टॉपिक ही शुरू हो रहा है. आपको कुछ क्वेश्चन हो हिस्ट्री पार्ट में, जिसको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं. Anyone want to ask a question? Can ask a question. I am audible or not? हेलो, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा. ओके,
कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना वी विल मूव टू द एग्जामिनेशन पार्ट. ओके, सो आप लोग सब लॉग आउट कर दीजिए, फिर लॉग इन करिए. तो फिर अभी 10 मिनट बाकी है, तो वी विल टेक द हिस्ट्री पार्ट ऑल्सो, सॉरी एग्जामिनेशन पार्ट. ठीक है, तो लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कीजिए सेम लिंक से.